make it clear to our participants. Yes, thank you, thank you. So, will we start today's session now? Yes, sir, definitely. Thank you, thank you. Just a minute. So, can you see this screen? आपको presentation दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, It's okay, visible. thank you. Yes. So, our today's session is about conservation, preservation of heritage materials. Okay. So, before starting the session, just to see this. Uh, anyone of you can say about this? इसके बारे में कुछ बता सकते हैं ये कि ये क्या है? I What is? can. Can I? Can. Yes, please. Excavation Yes. and conservation tools. Now I'm a student. It's called as the word is toolkit. Okay. Yes. So as any doctor have his own kit with him always. Doctor उसका पेटी उसके साथ होता है. So first aid box कहते हैं. So like that or any other workers like the plumber, he have his own toolkit with him. So a box with him. So like that for us, those who are working in the archives, archaeology and the museums field, this is a small and ideal toolkit. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. मुझे यहाँ से भी नहीं दिखाई देगा किसी का ऑडियो ऑन है. सो हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सो यू कैन सी दिस टूल किट इफ पॉसिबल. ये बहुत आसान चीजें हैं. आप परचेस करके एक एक आप टूल किट बना सकते हैं. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन यूज इट. इफ यू एड सम मोर देन इट विल बी योर ओन डिजाइन. ओके. सो when I was visited in US, मैं इंडिया और यूएस की बात करता हूँ. प्लम्बर को जब हम देखते हैं पर्टिकुलरली या किसी इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं, किसी फिटर को देखते हैं, वो एक छोटा सा थैला हमारे घर लेके आता है. बैग, स्मॉल बैग और स्मॉल बॉक्स. सो एक पेटी होती है. बट इन यूएस आई सॉ दैट देयर इज अ कंप्लीट वैन. एक वैन होता है जिस वैन में सब मटेरियल उसके अंदर रखा होता है. कई सारे टूल्स, पाना और स्क्रू ड्राइवर्स, बहुत कुछ होता है. आई वाज आस्क्ड हिम दैट, एक मैकेनिक थे वो, उनसे पूछा कि ये आप जो इतना मटेरियल रखे हो इसका क्या ये है? तो वो बोले एक छोटा सा साइकिल पंक्चर होने दीजिए या कोई बड़ा ट्रेलर जो है वो अगर खराब हो गया तो मैं उसको इन साधनों के द्वारा जो है उसको ठीक कर सकता हूँ. जो सिर्फ बदलने के लिए अगर कुछ बड़ा मटेरियल है वो नहीं है तो उतना ही बाहर से लाना पड़ेगा. अदरवाइज खोल फिटिंग करने के लिए जो भी लगेगा वो सारा मटेरियल उसके पास अवेलेबल है. सो मेक इट एज बेस्ट एज पॉसिबल विथ योर ओन एक्सपीरियंस. आपका खुद का एक्सपीरियंस है, जितना बेस्ट बना सकते हैं बनाइए. बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल एवरीवेयर सच टाइप ऑफ द लैबोरेटरीज आर देयर. सो ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट्स में, हर तरफ in each and every archive or museum or in archaeology department such type of the laboratories are available there. It's not possible, but प्रयास कीजिए क्योंकि हमें पता है, we know that we are very well know that in our colleges, especially in science college, there are science laboratories. Okay, chemistry, physics or the electronics laboratories. Okay, so we can see here, and few of the material from these laboratories will helpful you. So you can ask to them, they will cooperate with you and you can make your own small laboratory. Now you can see here, this is an update laboratory where in the foreign countries, natural history museum in US, when I was visited there in New York, so I was visited this laboratory there. Now we'll start these terms. Conservation. So it's starting from all forms of direct and indirect actions aimed at to increasing the life expectancy of an undamaged and or damaged element of cultural property is termed as conservation. Generally, what happened, we say that conservation and preservation. बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों शब्द समान ही है. नो, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन उसमें कुछ चेंजेस है. सो उसको यहाँ पर हमको समझना है. ओके, सो ऑल फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट एक्शन aimed at enhancing the messages carried out by damaged element of cultural properties termed as restoration. अगर उसको पुनरुज्जीवित किया गया हो, अगर उसको कुछ नया एडिशन किया गया हो उसमें, तब. बट
मैं सिंपल फॉर्म में बता देता हूँ कि जो चीज है वो बाद में खराब ना हो जाए, इसके लिए उसको प्रॉपर केयर करना, माने उसको किसी बॉक्स में रखना या धूल मिट्टी से उसको बचाना, ये जो है ये सिंपल प्रिजर्वेशन में आएगा। कंजर्वेशन में उसके ऊपर जो भी कुछ अगर कोरोजन वगैरह हुआ है तो उसको क्लीन करना, उसको एक्सपर्ट्स की मदद से क्लीन करना, फिर उसको जो है जो हम रिस्टोरेशन में जो प्रोसेस करते हैं उससे थोड़ा सा कम, यानी कोई एडिशन नहीं है उसमें, बट थोड़ा सा और बेटर ट्रीटमेंट्स जिसको हम कहते हैं, सो डायरेक्ट ट्रीटमेंट, सो ये जो है ये कंजर्वेशन में आएगा। और अगर टूटी हुई चीज को फिर से अगर हम जोड़ के काम करेंगे या फिर जो पार्ट डिसअपियर्ड हो चुका है उसको तैयार करके फिर जोड़ देंगे, सो इट्स रिस्टोरेशन। सो बट जनरली दिस टर्म कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन जब बात करते हैं तो उसमें प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन दोनों को इंक्लूड कर देते हैं। So there are three types of work in the museum. They are curative conservation, preventive conservation, and restoration. So curative conservation in a museum, about 2% of the collection may be in need of curative conservation. This is a general survey, okay, by ICOM, International Council of Museums. When a unique piece is actively damaged, it needs curative conservation. It is an urgent and vital process to be carried out by a trained conservator restorer. Then preventive conservation, all the collection in a museum are sound, stable, and some are damaged. Not all are damaged. So whatever may be the condition of the objects, preventive conservation is essential. A team of people in a museum may do this. If it is in good condition, little bit good condition, then it's okay. Restoration, normally about 10% of the objects in the collection of a museum are in a damaged condition. The priority of the treatment is secondary. A trained conservator restorer may do restoration. Some objects are in need of only conservation. Some objects are only in need of restoration. So there are objects which are in need of conservation and restoration. What is the general difference? जहां पर मैंने जैसे बोला कि अगर आपके पास एक आयरन मेटल है और गोल्ड मेटल आपके पास है, गोल्ड ऑब्जेक्ट कुछ है, उसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह जमा हुआ है उसको प्रॉपरली क्लीन करना, ये जो है ये कंजर्वेशन में आएगा। बट उसको अगर वो टुकड़ा, अगर कोई वो स्टैचू है, अगर वो उसका हाथ टूट गया है तो फिर से उसको जोड़ देना, ये रिस्टोरेशन है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नाउ हियर जनरली यू कैन सी दिस वर्क। कोई बता सकेगा अभी कि ये क्या हो रहा है? एनीवन? क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था वन वे डायलॉग नहीं होना है, वी नीड इंटरेक्शन। ओके, सो एनीवन, ये क्या हो रहा है कोई बता सकता है? विच प्रोसेस इज दिस? Is it related to conservation, preservation, or restoration? Can anyone say? Please unmute yourself. मेरी आवाज आ रही है? Sir, it's conservation. Yes. Sir, preservation. Conservation work हो रहा है. Okay. You can say sometimes it's conservation, sometimes it's for restoration. Before the restoration, so the same process you can do there. Okay. Now here again you can see that such type of works are there. This is again one type of the cleaning process, okay, for the metal. So we will start from this preventive conservation. You can see here this preventive conservation is tackling the 10 agents of deterioration, जिससे हमारी चीजें जो भी है, जो भी हमारा हेरिटेज जो मटेरियल है वो खराब ना हो जाए, तो हमें पहले खराब करने वाली जो चीजें है उसको हमें ढूंढना होगा। सो फिजिकल फोर्सेस जो है यहाँ पर, पॉसिबल कॉजेस, पुअर हैंडलिंग, एक्सीडेंट्स, सो उसके लिए क्या है? एब्सर्शन, ब्रेकेजेस, लॉसेस। देन थीव्स एंड वेंडल्स, सो पुअर सिक्योरिटी, ब्रीच ऑफ रूल्स, फायर है, वाटर है, पेस्ट है, कंटामिनेंट्स है, रेडिएशन, लाइट्स की वजह से, इनकरेक्ट टेम्परेचर, इनकरेक्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डिसोसिएशन। तो ये पुअर लेबलिंग, मिसप्लेसिंग आइटम्स, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी जो बातें हैं ये प्रिवेंटिव कंजर्वेशन में 10 एजेंट्स व्हिच डिस्ट्रॉयड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अभी इसमें बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द लास्ट वन, सो जहां पर पुअर लेबलिंग वगैरह लिखा है। ओके, सो लेट अस सपोज यू हैव अ ग्लास ऑब्जेक्ट और यू हैव अ मैन्युस्क्रिप्ट, क्या आप उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे? किसी मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर लेबलिंग किया जाता है क्या? नो।
उसके ऊपर जो पुट्ठा होता है या जो उसके ऊपर कवर लगाया जाता है उसके ऊपर जो है उसके बारे में लिखा होता है, या उसके ऊपर नंबर होता है, दूसरी किसी जगह पर उसके बारे में किया जाता है। अदरवाइज एक फॉर्म होता है, एनएमएम नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट का डाटा फॉर्मेट फॉर्म होता है, उसके ऊपर फिलअप करके वो उसके ऊपर रोल किया होता है। सो लेबलिंग जब हम करते हैं तो किसी ग्लास के ऊपर अगर आप स्टिकर लगा देंगे तो हो सकता है कि जब आप वो लेबल लगा रहे हो निकालते होंगे उस समय में वो ग्लास ब्रेक भी हो सकता है, अगर वो थोड़ा सा ओल्ड है या बैड कंडीशन में है उस समय में। सो ये इन बातों को हमको सोचना है। तो इन प्रिवेंटिव कंजर्वेशन नाउ विल सी व्हेन राइट हियर वन, अभी यहाँ पर आप जो देख रहे हैं तो ये पुअर हैंडलिंग जो है, जब जब हाथ से गिर गया, टूट गया, या किसी ने वैंडलिज्म किया इसमें ये टूट गया, सो इसके लिए जो है फिर आपको कार्य करना होगा। मगर ये कार्य करते समय आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पर डिसीजन जो टूट गया है और ये रिस्टोरेशन वर्क करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं। मगर ये आप देखते ही आप समझ सकते इट्स नॉट टू ओल्ड, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, अदरवाइज इट्स नॉट इन दैट कंडीशन कि जो अपने आप में टूट जाए, बट इट मीन्स दैट देयर इज एन समथिंग प्रॉब्लम, कुछ वैंडलिज्म हुआ होगा, कुछ मिसहैंडलिंग हुआ होगा जिसकी वजह से ब्रेक हो सकता है। दीदारगंज यक्षी के बारे में जिनको पता है, बिहार पटना दीदारगंज यक्षी केस जिनको पता है उन लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा। So the source of the cultural property are varied. So the objects may come through exploration, excavation, treasure trove finds, through purchase, gifts, transfer, whatever be there. So once the objects were taken care of by their own environment or owners, when they are brought to the museums or archives or in our archaeology department, a very few members of staff manage a large number of objects. अभी आज की तारीख में जब पूरे इंडिया की हम बात करते हैं तो हमें ये पता है, साइट के बारे में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो देयर आर अराउंड 4700 नेशनल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट्स आर देयर एंड अराउंड 3700 और 3500 एक्सपर्ट्स वी हैव। तो इट मींस दैट एक साइट के लिए भी एक आदमी नहीं है। म्यूजियम्स की जब बात करते हैं, इफ आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल, आवर सेंट्रल म्यूजियम नागपुर which have the collection around 27,839 objects, but how much staff की अगर बात करेंगे, only 5 people are permanent there and other 5 are temporary or contractual based. That other 5 are for cleaning and maintenance purpose. Only 5 people are for as a permanent. So the objects are around 28,000 approximately and the people are 5 only. So यहाँ पर आप ये sentence जो है, very few members of staff manage a large number of objects. So the aggression due to nature and human beings is high. In order to control, इसका मीनिंग क्या है ये समझना है, क्योंकि हमारे संग्रहालय में अगर एक आदमी को 2000 चीजों के बारे में अगर ध्यान देना है, इफ यू आर ओनली वन पेंटिंग क्यूरेटर और संग्रहालय में आपके पास अगर 2000 पेंटिंग्स अवेलेबल है, तो कैन अ सिंगल पर्सन handle these all 2000 paintings? Can he really took care for this all 2000 paintings? It's not possible. So we need to increase the manpower, but it's not possible because of these policies or anything. So what we have to do? So be serious about these all things. When you want to establish a new museum or if you want to work in a museum at that time, in order to control the deterioration of the cultural property, we must be aware of the factors of deterioration or dangers. The museum personnel should be competent to handle the problem, and the conservators or restorers and the museum staff should be good communicators. So here, if the conservators discuss the problems with the curators, most of the objects will be better preserved. यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, क्यूरेटर जनरली वो प्रिजर्वेशन का कार्य करता है, और प्रिजर्वेशन जो हमारी प्रॉपर्टी को अच्छा रखना है या उसको बाद में कोई डैमेज नहीं पहुंचना है, इसके लिए उसको प्रॉपर मेंटेन करना है. So this is what the curator's responsibility. But for the strengthening the objects is what the responsibility of a conservator. So we need a proper communication between curator and conservator. Okay. So here, in order to increase the life of an object, one must know the life history of the object. The physical integrity of the object is 100% at the time of its creation only. The time taken to completely disappear is called the life expectancy. So, for example, an iron object at the time of its making has 100% physical integrity. When it completely corrodes,
there is a no metal core, but the form of the object is maintained. So even though there is deterioration, the life expectancy is maintained further. But after restoration work also, we can't say that it's 100% restored or it's 100% as it is, because it's not possible. It's possible only at the time of creation. But approximately we can say that up to 70 or 80% we can restore it properly. Aggressions of cultural property. यहाँ पर भी आपको दो तीन बातों के बारे में सोचना है. One is immediate destruction, progressive destruction, and public aggression. Okay, here one by one we can see this torrential downpours. They hit Jaipur last week. This presentation, which was made in September 2020 for the first session regarding this museum's course. So you can see over here, because of this flood problem in Albert Hall Museum, Rajasthan, what happened over there. These are all heritage items, the manuscript, the archival sources, the documents or other files, they all are damaged up. Here, because of the fire in the National Museum of Natural History, which was in 26 April 2016, thousands of these species were burned at that time. But only first floor जो है उसका वो proper condition में रहा था इस समय में. You can see again these two examples. यहाँ आप देख रहे हैं ये glass यहाँ पर है, but here for this showcase there is no glass. So when I was visited one state museum, this is condition in state museum. Very sorry for to say this, but this is the condition in state museum. What happened actually? जहां अगर बच्चे या स्कूल कॉलेज के ट्रिप अगर आते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल नजदीक से बच्चे जा सकते हैं, यहाँ पर कोई बैरिकेड का ये नहीं लगाया है, सो इसको डायरेक्टली टच कर देंगे तब ये ब्रेक होने की संभावना है. सो वी नीड टू केयर फॉर दिस थिंग्स. Antique works vandalized in museum. This is an island, Berlin, and you know that this is an most famous incident at that time. And because of vandalism, such problems was occurred at that time. And this place, she was the director of the museum, and she informed to the journalist about this. And this is one more incident. 18 March 2015, 3 militants attacked the Bardo National Museum in Tunisian capital city of Tunis. And you can see 21 people, mostly European tourists, were killed at the scene. And an additional victim died 10 days later. Around 50 others were injured. This is what in condition in museum. And here at the same time, there was a parliamentary session. And you can see over here in this campus, this incident was happened. Here are all the people, those who are died were here. When at the entrance of the museum, you can see that. And at the time of incident, you can see this horrible picture. So militant attack in the museum. So such things happen. So हमको इसके लिए तैयार रहना है. Natural disasters हो या फिर कोई man-made हो, जो भी बातें हैं, तो हमको उसके लिए तैयार रहना होगा. हमारे पास उसके इंतजाम होने चाहिए. Security and these all things हमारे पास available होने चाहिए. Professional aggression की जब हम बात करते हैं, जो लोग संग्रहालय में ही काम करते हैं, बट संग्रहालय की चीजों को जब हैंडल करते हैं, उस समय उनको उसका प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. मिस हैंडलिंग जब हो जाता है, नाउ हियर द प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके लिए करेक्ट लेवल्स अभी जैसे हम कहते हैं कि स्टाफ भी जो होता है, वन ऑफ द सेशन आई वाज मेंशन्ड अबाउट इट. व्हेन वी एंटर्ड इन द म्यूजियम और इन आर्काइव्स, वी स्टार्ट द एसी, एंड व्हेन वी लेफ्ट आउट द ऑफिस, देन वी शट ऑफ दिस ऑल थिंग्स. तो ये बंद कर देते हैं. इसकी वजह से क्या होता है, और ज्यादा डैमेज हो सकता है, और ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. So these all systems are for the heritage materials. So we need the correct levels of heat and humidity. This full air conditioning होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. अगर है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका सभी प्रावधान होना चाहिए. So improvise the microclimate, well planned storage areas, protection from light, correct levels of light, use of conservation techniques. These are, and this depending upon the type of treatment to be given to the objects, you can classify it as follows: metals, organic objects, inorganic objects, and paintings, etc. So here it's mentioned regarding this preventive conservation things, but now we'll move towards a little bit fast. Atmospheric factors which are affecting on museum objects, they are the light, heat, humidity.
So you know me about it. So please take again screenshot so that it will be better. So कहाँ पर कितना लाइट होना चाहिए उसके स्टैंडर्ड जो है ये ICOM के द्वारा डिसाइड किए गए हैं. हीट कितना होना चाहिए, द आइडियल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर विल बी 20 to 22. तो ह्यूमिडिटी अराउंड 45 to 60 डिग्री के इसमें दिए है. सो बट इट्स डिपेंड कि ये कहाँ पर है, यानी इनसाइड द hall or inside the showcase or outside in the galleries or whatever be there, and depending on the objects too, क्योंकि stone objects और ivory objects या stone objects और paper manuscripts, family manuscripts इसके लिए भी अलग अलग होना चाहिए. तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जनरली जब म्यूजियम में एंट्री करते हैं या कहीं जहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है तब ये कंडीशन हमें दिखाई देता है. तो अगर ह्यूमिडिटी और इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो देन एयर पोल्यूशन की बात करते हैं. जनरली एयर पोल्यूशन के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं कि ग्लासेस वगैरह लगा देते हैं. बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली, जब संग्रहालय या आर्काइव्स या जो भी आपका डिपार्टमेंट है रोड के बाजू में अगर है तो रोड के किनारे से आपका म्यूजियम का मेन बिल्डिंग या जो विंडो होगा उसके बीच में जो 5 फीट 10 फीट का जो जगह होगा वहां पर अगर अच्छे से पेड़ लगाए जाए तो एयर पोल्यूशन से ज्यादा बचाव आप लोग कर सकते हैं. इफ यू नीड टू ओपन द विंडोज देन यू कैन यूज दिस टेक्निक, और ये सबसे बेस्ट है ये मुझे लगता है. इको फ्रेंडली म्यूजियम्स के इसमें हमने इसके लेयर्स की बात की थी. साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करते हैं. जनरली जब हमारे यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रीज अगर हमारे आजू बाजू में, फोर्जिंग इंडस्ट्री स्पेशली, तो उसका फोर्जिंग इंडस्ट्री में जो आवाज होता है या जो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसकी वजह से अगर हमारे म्यूजियम में या हमारा जो मटेरियल है अगर वहाँ ग्लासेस वगैरह हो तो वो कम्प्लीटली ब्रेक हो सकते हैं. तो वी नीड टू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स. बायोडिटरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, अलग अलग चीजें हैं. तो छोटे से छोटे वर्म से लेकर से जो है आपको प्राणियों तक के अलग अलग इसमें चूहे भी हो सकते हैं, संग्रहालय में कुछ भी हो सकते हैं. तो इनके बारे में हमको ध्यान देना है. कंट्रोल मेजर्स फॉर बायोडिटरेशन, जनरल ट्रीटमेंट फॉर इंसेक्ट्स. सो फॉर बायोडिटरेशन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ फ्यूमिगेशन चेम्बर की हम बात करते हैं, या थाइमोल, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड, इथिल ब्रोमाइड, इथॉक्साइड, इसका आप प्रयोग करते हैं. बट एक्सपर्ट जो है उनको पता है कि कहाँ पर कितना प्रमाण यूज करना है. ये जनरल कोई भी ऐसे ही नहीं कह सकता है. जनरल ट्रीटमेंट्स की जब बात करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, फ्यूमिगेशन विद फ्यूमिगेंट्स और इंसेक्ट रिपेलेंट्स and dusting, spraying or fogging of this insecticides. Fumigation, application of chemicals. अभी यहाँ पर application of chemicals को सिर्फ देखें. So around 5% solution of DDT, BSC, 0.01% solution of paranitrophenol, mercury chloride is suitable for this eradication of insects. But please remember that you should need care for handling these all chemicals. Okay. So generally when we visited the old collections, you will get such type of you can get such type of books or the bad condition materials. यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा का पूरा लगभग वो खा चुका है. तो इसको फिर हम रिस्टोर करना ये तो पॉसिबल नहीं है, मगर ये ऐसा कलेक्शन जब कोई डोनर हमारे यहाँ लाकर देता है तब हम उसको डायरेक्टली हमारे आर्काइव्स में या हमारे संग्रहालय के स्टोर रूम में नहीं ले जाना चाहिए. इतनी तो भी बात हमारे दिमाग में सबसे पहले रहनी चाहिए. या ऐसा मटेरियल ओनर के पास से हमारे पास तक आना ही नहीं चाहिए, ये बात भी ध्यान देनी होगी. ध्यान यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पेंटिंग, एक्चुअली यहाँ पर दिस इज एन ओरिजिनल पेंटिंग. जब इसको बहुत नजदीक जाकर के जब देखते हैं तब पता चलता है कि यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम्स हो चुके हैं. ये जो सील दिखाई दे रहा है और यहाँ ये जो होल बने हुए हैं, इस होल्स के अंदर इस तरह से जो है ये छोटे छोटे एक्स वगैरह आपको मिल जाते हैं. तो इट मीन्स दैट कि जो हमें बाहर से दूर से ठीक दिखाई दे रहा है, बहुत क्लोजअप व्यू से अगर आप देखेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा. देन यू नीड टू स्टार्ट योर वर्क. अभी यहाँ पर आप जो फ्यूमिगेशन चेम्बर देख रहे हैं, सच टाइप ऑफ द फ्यूमिगेशन चेम्बर्स आर सो कॉस्टली. ये ज्यादा महंगे हैं. इसकी कॉस्ट अराउंड 2 लाख से शुरुआत होती है और ये लगभग जो है 30 लाख 35 लाख रुपए तक ऐसे अलग अलग फ्यूमिगेशन चेम्बर मिलते हैं. मगर आप खुद अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह से भी ये तो अभी ये बैग्स भी अभी मिलते हैं, डिस्कार्ड एज द फ्यूमिगेशन बैग्स.
सो जनरली लंदन और वहां पर इस तरह से ये यूज होते हैं यूके में, मगर हमारे यहाँ भी आजकल यूज होता है, इंडिया में भी अभी आने लगे हैं। सो अगेन डिफरेंट कॉस्ट आर देयर। ये जो है लगभग 80,000 रुपए से छोटा बैग जो होता है उसकी शुरुआत होती है, और 6 लाख 8 लाख रुपए तक अलग अलग बैग इस तरह के मिलते हैं उसके साइज के हिसाब से। आप ये जो देख रहे हैं इसको पूरा फिर बंद किया जाता है। देन यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाइस, और पीछे जो कनेक्शन दिया हुआ है नेक्स्ट फोटोग्राफ में आप ये देख सकते हैं, इसको जो कनेक्ट होता है, सो CO2 फ्यूमिगेशन। So this is typical installation, pressure regulator. It's not necessary only to use as the CO2. Scholars जो है या उसके जो experts है तो वो अलग अलग ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, बट जनरली such type of the techniques used at there. ये जहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ये यहाँ भी जब पॉसिबल नहीं है तो आपका खुद का अगर एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तब आप आपका खुद का फ्यूमिगेशन का चेंबर बना सकते हैं। जनरल मैं ये बताता हूँ, हमारे इसमें हमने जो प्रयोग किया है फॉर द आवर आर्काइवल और म्यूजियम मटेरियल, हमने वुडन प्लैंक्स को लेकर के उसको प्रॉपरली कट करके, जैसे हमारे यहाँ पर घर बनाते समय सैंड को हम लोग छलनी करते हैं, तो जो छोटा वाला जो सैंड होता है उसको ही हमें यूज करना होता है, सो सॉफ्ट वन। सो उसके लिए हम जिस तरह का बड़ा एक ये बना लेते हैं, छलनी बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो आप उस तरह से वो बना सकते हैं। 4 तरफ में लकड़ी का ये होके बीच में जो है एक आयरन का जाली जो है वो यूज कर सकते हैं। और हमारे पास जो मटेरियल होता है वो जनरली कितना टाइम और क्या मटेरियल यूज करना है फॉर द फ्यूमिगेशन के लिए, वो अगर आपको सही समझ है तो जैसे हमारे अलमारा के रैक्स जो होते हैं रैक्स की तरह आप उसे लगाकर भी यूज कर सकते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स बाद में आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू विल गेट एन क्लियर आइडिया रिगार्डिंग दैट। और एक उस तरह का कंप्लीट रूम हमने हमारे म्यूजियम में बनाया, जिसके लिए हमें जो है सिर्फ 45,000 रुपीज खर्च आया। अगर उतना ही फ्यूमिगेशन चेंबर अगर हम परचेस करते तो हमें लगभग 30 लाख रुपीज एक्सपेंड करने पड़ते। और अभी तक हमने इस तरह से 70,000 डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रिजर्वेशन वर्क किया हुआ है, कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन वर्क जो है वो उसी के जरिए किए हैं। Now here, general treatments for this pictogrammic plants and then insect trapping in museums, non-toxic pest controls in museums, ये सारी बातों को समझते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक छोटा सा यस ट्रैप जो दिखाया है, छोटे छोटे हमारे इंसेक्ट्स और ये जो संग्रहालय में आते हैं या जो भी हमारा आर्काइव मटेरियल जो रखा होता है, so yes trap, M trap, G trap, L trap, different types are there. So this is a neuronic system, a professional tool for recognize and classify insect species. और यहाँ आप देख सकते हैं उसको पकड़ने के लिए भी ये यूज किया जाता है, जहाँ कॉर्नर में छोटा सा कहीं भी कपबोर्ड के आजू बाजू में या जो शोकेसेस है उसके आजू बाजू में रख सकते हैं, और इसका बेस्ट यूज आपको हो सकता है। Then another system is that freeze drying. So freeze drying is very good method of treating the organic objects to save them from the biological agents. So the organic objects are covered with these polythene covers and deep frozen at a temperature of about -22 degrees Celsius. So, but it's not possible at everywhere. So it's possible only in the some big institutions. This method, which keeps off all biological agents from the museum and archaeological objects of organic nature, in the European countries, this method is in vogue. So the objects, when treated in this way, keep off the spores also from the objects. Once a year, the objects can go for deep freezing. हमारे यहाँ पर भी हम ये कहते हैं कि किसी बेस्ट क्वालिटी का अगर आपके पास अगर स्टोर है या फिर आयरन का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, मगर ये सभी के लिए करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिफोर ऑफ दैट एग्जामिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ये सारी बातें आपको करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये जनरली एक मम्मी की तरह हमें लगता है, और इसी तरह से प्रोसेस करते हुए डिफ्रोजन आपको करना है। देन पेपर बेस्ड ऑब्जेक्ट्स, आर्काइवल साइंस, जहां पर हम दो बातें करते हैं। एक तो हमारा पेपर जो उसमें एसिडिफिकेशन होता है, डीएसिडिफाई करना है, और उसके लिए फिर कंजर्वेशन मेजर, अगर वो प्रिंटेड मटेरियल है, हियर इज एन प्रिंटेड मटेरियल, दिस इज एन हैंड रिटन। तो दो अलग अलग प्रोसेस है। इसको आप जो है डायरेक्टली
मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो पाउडर है वो डिस्टिल वाटर में मिक्स करके उसमें आप इसको डालकर डीएसिडिफिकेशन कर सकते हैं. बट इफ इट इज एन हैंड रिटन देन यू नीड टू स्टार्ट फर्स्ट इंक फिक्सिंग एंड देन यू नीड टू प्रिजर्व इट. सो जनरली ट्रेडिशनल वे में जब हम देखते हैं तो पेपर के लिए मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर ये सांप जो होता था, स्नेक का स्किन रखा जाता था और उनको इससे ऐसा लगता था कि इसकी वजह से जो है इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आएंगे, और ये जो कपड़ा होता था उसके ऊपर भी ट्रीटमेंट किया जाता था और उसको रखा जाता था. अब यहाँ पर जो है स्पेशली आर्काइव्स में जब पेपर कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन वर्क होता है तो वो किस तरह से होता है उसका एक जनरल फोटोग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है. तो ये मटेरियल है. अगर आप किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को या किसी भी बाइंडेड जो भी हमारा रेयर बुक वगैरह है उसका अगर काम करना चाहते हैं, पहले तो आपको पेपर मटेरियल जो है बाइंडिंग पूरा खोलना होगा. तो इट इज एन हैंडमेड अगर है और इट्स एन प्रिंटेड है, लिथोप्रेस है, जो भी है उसका अगर बाइंड है तो वो पूरा खोलना होगा. एक एक पेपर को आपको पहले पूरा ठीक से क्लीन करना होगा, फिर उसके बाद आपको जो है उसका ट्रीटमेंट आगे शुरू करना होगा. बिफोर क्लीनिंग उसका डस्ट वगैरह जो है वो क्लीन किए बगैर आप उसकी ट्रीटमेंट को शुरुआत मत कीजिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पहले उसका डस्ट और ये सब क्लीन कर रहे हैं. फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे कहा था पहले डीएसिडिफिकेशन कर लीजिए. डिस्टिल वाटर में मिथिल सेलुलोज पाउडर डाल करके उसको थोड़ी देर के लिए उसमें रखिए. फिर उसके बाद उसको निकाल करके जो है पानी उसका निकलने दीजिए. आपको दिखाई देगा कि वो पीला कलर जो है वो पानी वो पूरा बन जाता है, यानी जो पेपर जो है वो व्हाइट हो जाता है, डीएसिडिफाइड हो जाता है. फिर उसके बाद जो है उसको टिप पेपर पर रख के उसका पूरा सोक ले सकते हैं. फिर उसके बाद हमारे पास जो ये जापानीज टिश्यू पेपर हम यूज करते हैं, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं बट गुड क्वालिटी का होना चाहिए और दोनों तरफ से, यानी पेपर का ऊपर और पेपर का नीचे दोनों तरफ वो आना चाहिए. इसलिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर फिर मिथिल सेलुलोज का जो पाउडर होता है, सो वो पाउडर का पेस्ट बना करके हम इस पेपर के ऊपर लगा देते हैं. फिर उसके ऊपर से जो ओरिजिनल हमारा डॉक्यूमेंट है वो रख देते हैं. फिर उसके ऊपर दूसरा टिश्यू पेपर जो होता है जापानीज टिश्यू वो उसके ऊपर हम लगा देते हैं. सो दिस प्रोसेस यहाँ पर अगर वो ऑलरेडी बाइंड है, उनको ज्यादा उसको खोलना नहीं है, तब भी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मेरे पास जो अकबरनामा जो मैन्युस्क्रिप्ट मेरे पास अवेलेबल है, इसका पेपर मैन्युस्क्रिप्ट 1577 में जो अबुल फजल ने लिखा था ऐसा माना जाता है. सो उसका एक कॉपी मेरे पास है मैन्युस्क्रिप्ट का. तो उस समय हमने ये इस तरह का ट्रीटमेंट किया था. तो इट इज बेटर अगर आपको उसको पूरा नहीं खोलना है और ये नहीं करना है तब आप इस तरह का वर्क कर सकते हैं. बट बिफोर ऑफ दिस आल्सो humbly I want to suggest that please do all cleaning process, then if need there then this ink fixing work and then you start this work. Okay, then palm leaf manuscript की हम बात करते हैं. तो palm leaf में भी दो बातें हैं. सबसे पहले तो हमको ये सोचना है कि पेपर मैन्युस्क्रिप्ट हो या palm leaf मैन्युस्क्रिप्ट हो या पेंटिंग हो, तीनों के लिए जो है हमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो बहुत सीरियसली सोचना है. और जहां हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली ये जो पाम लीफ होते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं जब कई बार मिलते हैं तो उसका कंडीशन इस तरह से रहता है, बीच में कई बार होल हो चुके हैं, कहीं कट हो गया है. सो इस कंडीशन में जब आपको ये मिलेंगे तब आप अगर किसी उसको रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, एक कंडीशन बैड है, फिर भी लोग क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में होने के बावजूद भी वो हाथ में दे देते हैं, फिर और ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे. फॉर द हैंडलिंग यू जस्ट पुट इट ऑन अ वुडन प्लंक, वुडन बॉक्स जो है उसके ऊपर रख के आप लोगों को दिखा सकते हैं. इट इज इन बैड कंडीशन फॉर दैट. देन अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे वो भी इसको बहुत अच्छे से कार्य करते थे. उसके ऊपर लिखना वगैरह जो प्रोसेस है शायद आपको पता होगा तो ठीक है, अदरवाइज आई विल शेयर द नोट्स, यू कैन स्टडी. तो उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होती थी, सो उसके बाद इसको जो है अच्छे से बाइंड किया जाता था. उसको बाइंड करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं जितना, अगर मीडियम साइज है तो 2 होल होंगे, अगर बड़ा साइज होगा तो 3 होल हो सकते हैं, कुछ इसके लिए 4 होल्स भी हो सकते हैं. सो ये ट्रेडिशनल वे से उसको जो है फंगस और ये निकालने के लिए उसका ये सिस्टम यूज होता था, जिसमें जनरली नीचे जो है हमारा कर्पूर और ये जो होता था और जो स्पाइसेस जिसको हम कहते हैं उसको यूज करते थे, लवंग और ये दालचीनी जो होता है, मिरी पाउडर, तो वो इसमें डाल करके इसको जला देते थे कर्पूर, और कड़वे नीम के पत्ते जो होते हैं वो इसमें डाल करके जलाकर ये ट्रेडिशनल सिस्टम से ऐसा करते थे. मॉडर्न वे में आप यहाँ देख रहे हैं
यहाँ पर अलग ट्रीटमेंट हो रहा है। अब इसको जो है आपको यहाँ आप देख सकते हैं। सो ट्रांजिशन के जो प्रॉब्लम्स है, सो डिस्कलरेशन, डैमेज ऑफ इंसेक्ट्स, फंगल इफेक्ट, then splitting of the surface layer and fading of writing, brittleness and weakening of the leaves. So first of all, clean it. Then you can start this procedure for conservation. Clean these soil surfaces, strengthen image, support damaged areas, impart flexibility, reduce further insect damage. And removing insects, kill all insects infesting manuscripts, freeze mothballs or containing paradichlorobenzene or naphthalene, place in airtight container, gently brush with soft brush to remove dust and insect parts. But here you can see again the work for the new ones. Then here again you can see the methods they used over here. And for the removing the surface soil, dry cleaning, soft brush and erasers, cleaning and hydrating, then oiled and dried all. Here ethyl alcohol you can use then for the repairing mechanical damage, use this Japanese type tissue as I mentioned for the paper manuscripts also, PVA and methyl cellulose. Then similar to maintaining, paper should be thinner than the palm leaves like that. So here you can see that work. And for the oiling, you can use the lemongrass oil or the citronella oil. It's for to keep its flexibility. उसका जो है softness जो है उसको कायम रखने के लिए. So you can use this here. Gently you apply that citronella or lemongrass oil on the palm leaves. Okay. So then for the digitization work also, you please take care about it. Then we move towards the paintings. पेंटिंग्स में जनरली हम देखते हैं 3-4 अलग-अलग तरह के होते हैं, कैनवास, पेपर प्रिंटिंग्स और वुडन मटेरियल के ऊपर प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग्स। तो जनरली हम यहाँ देखते हैं कि जो भी पेंटिंग्स आपको प्राप्त होंगे, पहले तो उसी को भी सॉफ्ट ब्रश से जो है हम जिसको जीरो ब्रश कहते हैं, स्पेशली पेंटिंग्स के लिए और अलग-अलग ये जो मिलते हैं ब्रशेस मिलते हैं। सो यूज दिस सॉफ्ट ब्रश फॉर टू रिमूव द डस्ट। जनरल सभी के लिए पेपर हो, पाम लीफ हो, पेंटिंग है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट है। देन कहाँ पर प्रॉब्लम हो चुका है इसको जो है माइन्यूटली उसका जो है प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन कीजिए। देन you start for work it. This is actually called restoration work. It's not only the conservation preservation work, this is the restoration work. Here again this painting restoration. Then here you can see that this is the after restoration, again this is the conservation work. यहाँ पर जो है इसको strengthen और ये करने के लिए supporting किया जा रहा है. So here again you can see this is in different archives. Here you can see especially this painting preservation conservation laboratory. Then at the time when you move it, the paintings or these frames from one place to another place, then please use such type of the techniques. यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये simple technique से बनाया है, कोई ज्यादा hard नहीं है ना। हमारे यहाँ पर कुछ बोझिला सामान हो तो इधर से उधर ले जाने के लिए करते हैं। So like this type of the techniques if we use then it will be better, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा फ्रेम है पेंटिंग का तो वो खराब हो सकता है, इसलिए ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सम प्रोग्राम्स पेंटिंग फॉर प्रिजर्वेशन आल्सो यू कैन यूज। देन वी मूव टुवर्ड्स द फोटोग्राफ्स। जनरली हम देखते हैं कि 16 to 18 बट इट्स नॉट रिकमेंडेड अगर किया है, सो इट्स फॉर द बिग साइज एंड जो न्यू वंस है, बट फॉर द जनरल 20 to 20 डिग्री इज एन बेटर इन इंडियन कंडीशन अगर हम बात करेंगे। तो द जनरल कंसिडरेशंस जहां हम देखते हैं, तो आपको फोटोग्राफ अगर रखना है तो अगर फोटोग्राफ ज्यादा दिन तक एक के ऊपर एक रखेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ देखते हैं। तो गांधी के हमारे पास लगभग 7000 फोटोग्राफ्स अवेलेबल है एंड कंटेम्पररी पीरियड के और दूसरे तो 15,000 फोटोग्राफ्स वी हैव इन आवर कलेक्शन। सो जनरली हम देखते थे कि जो भी बॉक्स होते थे तो फोटोग्राफ एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते थे, तो उसके लिए फिर दो अलग अलग तरह के ये है। एल्बम अगर देखते हैं तो इस तरह से भी दिखाई देते हैं। तो व्हाट्स द ट्रीटमेंट? जनरली ये कार्ड शीट पेपर आप देख रहे हैं, उसके ऊपर जो है फोटोग्राफ को यहाँ चिपकाया गया है और उसके ऊपर से फिर से एक जो है पेपर जो हमारा पेंटिंग करने के लिए जो पेपर हम यूज करते हैं, जो थिकनेस ज्यादा होता है, तो वो उस पेपर को इसके ऊपर लगाया गया है एंड देन हियर इज द कैप्शन। सो ये एक सिंपल टेक्निक है, बट देन आजकल जो है न्यू टेक्निक्स में फोटोग्राफ को ये करने के लिए जो फ्रेम बनाए जाते हैं, सो सच टाइप ऑफ द फ्रेम्स आर यूज्ड देयर
and here which is a seal frame rivets, and this another this ultraviolet filtered glasses, because photograph अगर आप जनरली देखते हैं घर में कोई फोटोग्राफ आप प्रिंट करके लगा दीजिए, उसके ऊपर अगर सनलाइट आएगा तो कुछ ही महीने के बाद वो फोटोग्राफ पूरा का पूरा जो पिक्चर है वो इंक जो है वो गायब हो जाएगा। मैंने अपने घर में ये प्रयोग करके देखा है। विद इन 6 मंथ्स कंप्लीटली ब्लैंक पेपर हो जाता है, धीरे धीरे वो येलोइश होने शुरू हो जाता है और बाद में जो होता है वो कंप्लीट कलर जो है वो चला जाता है। तो लाइक दैट, तो उसको बचाने के लिए अल्ट्रावायलेट जो ग्लासेस है उसको यूज करते हैं, एंड द अनदर मटेरियल व्हिच यूज्ड ओवर हियर, सो सच टाइप ऑफ फ्रेमिंग्स कवर्स यूज्ड। देन फॉर द टेक्सटाइल्स, जनरली टेक्सटाइल जो है उसको जनरली इसमें दो ही बातें देखनी, एक तो उसको काम अगर करना है, अगर वो खराब कंडीशन में है, आप उसको अगर क्लीन करना ही चाहते हैं, स्पॉट्स वगैरह उसके निकालना चाहते हैं, तो 5% solution of polyvinyl acetate, it is advisable to maintain 45 to 60 degree RH and 20 to 22 degree Celsius throughout the day. But here this is the general techniques, you just hang it, otherwise you can give the support from the back side too also, and you can hang over here. Otherwise जैसे हम किसी भी शोरूम्स में देखते हैं या क्लास के शॉप्स में देखते हैं, उस तरह से आप उसको प्रॉपर्ली हैंग कीजिए, या फिर इस तरह से कर सकते हैं। दिस इज अनदर सिस्टम। इससे सबसे बेस्ट टेक्निक है, अगर आपके पास स्टैचू अगर होगा जिसके भी क्लॉथ्स और ये है, अगर उसको दिखाना है, अगर कोई स्टैचू है तो उसके ऊपर आप जो है उसको लगा देते हैं। जैसे कोई शर्ट है तो एक स्टैचू ले लीजिए और उस स्टैचू को ही वो शर्ट पहना दीजिए ताकि वो ज्यादा ठीक रहेगा। तो दिस इज एन बेस्ट वर्क। अदरवाइज इसको अगर आप घड़ी करके उसको अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि कुछ दिनों के बाद उसके टुकड़े आपको मिल जाएंगे। देन हियर क्लॉथ्स और टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, अब आप ये जो देख रहे हैं ये पतंग है, मगर ये बड़ा पतंग है और यहाँ जो है ये कुछ हिस्सा उसका बचा हुआ है, सो उसका वर्क यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस सच टाइप ऑफ द वर्क दे आर डूइंग। नाउ हियर अगेन यू कैन सी दिस नील आर्मस्ट्रांग एंड ऑल्ड्रिन जो चांद पर पहले पहुंचे थे, तो उनका ये सूट है उस समय का और उसका वर्क यहाँ पर वो कर रहे हैं। सो दिस आर वेरी, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल बातें बता रहा हूँ। ज्यादा डेप्थ में एक मटेरियल को लेकर भी अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ पेपर के लिए भी 1 घंटे का सेशन हो सकता है, मोर देन दैट, क्योंकि हमने 1 डे ट्रेनिंग सिर्फ पामलीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए किए हुए हैं। हैदराबाद में 1 डे ट्रेनिंग पामलीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए हमने किए थे। व्हेन यू वांट टू मूव दिस टेक्सटाइल मटेरियल्स आल्सो, देन यू कैन यूज सच टाइप ऑफ द टेक्निक्स। ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बेस्ट टेक्निक्स है। सो नीड ऑफ प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर केयर at the time of moving from one place to another place. Then for the metals, for the golds and silver objects, for the gold you can generally see over here, जब भी मिलेगा तब आपको पहले तो उसका जो है डस्ट और ये जो है उसको प्रॉपरली क्लीन करना होगा। यहाँ पर उसके बताया है such objects are immersed in a 1% solution of nitric acid which removes the gaseous materials. Then for the silver objects 10% of solution of formic acid, जिसको आप उसका ब्लैक डिपॉजिट वगैरह जो है वो निकालने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और जनरल ट्रीटमेंट सिल्वर के लिए क्या करते हैं, विनेगर और इसको यूज करते हैं। सो यहाँ आप देखते हैं कि बेकिंग सोडा, एल्यूमिनियम फॉइल, उसको लेकर के सॉल्ट एंड बॉइलिंग वाटर। सो लाइन अ पॉट विथ एन एल्यूमिनियम फॉइल एंड chiny side up, so place silverware inside and ware inside, then add enough water to cover silverware and add 1 cup baking soda and 1 teaspoon salt. Very carefully add 1 cup white vinegar. Then bring water to a boil for 3 minutes. Take out the silver items once the water cools down, and then plunge silverware in warm soapy water and clean with a clean cloth. Wipe dry with a separate dry and clean cloth. So all done. This is a gentle treatment. So ये सिल्वर मटेरियल अगर आपके पास है, बट यहाँ पर जो 3 मिनट का ये दिए है, सो प्लीज केयर, अगर आपके पास जो सिल्वर वेयर जो भी है अगर वो बहुत नाजुक है तो बहुत डेलिकेट है तो ये टाइम कम भी कर सकते हैं। ये आपका एक्सपीरियंस है, आपको कम ज्यादा करने का ये बात पता चलेगी। जनरली यहाँ 3 मिनट लिखा है, इसलिए किसी को भी डाल के 3 मिनट ऐसा नहीं करना है। इफ इट इज इन गुड कंडीशन देन यू कैन यूज फॉर 3 मिनट्स। और यहाँ पर ये दूसरा ट्रीटमेंट है, सच टाइप ऑफ द मेटल्स व्हिच यूज्ड, जहाँ आपको
4 डिग्री सेल्सियस से उसको कम रखते हुए, जिसको pH और इसको यूज करते हुए फ्लोरीन को आप क्लीन कर सकते हैं. सो दिस इज कॉमन प्रिजर्वेशन मेथड्स. Then for the material like the copper and other alloy, so generally for the coins हम देखते हैं इस तरह से. जब भी आपको एक्सकैवेशन में ये कॉइन मिल जाते हैं तो इस कंडीशन में होते हैं. So before treatment, here it is. After 30 minutes, after the treatments. So इसके लिए क्या ट्रीटमेंट्स करने हैं कि जो कॉइन्स इस तरह से आपको क्लीन दिखाई देंगे. तो अभी हमने उसके बारे में भी सॉरी HNO3, H2SO4 एंड HCl. आपको अगर कॉपर के कॉइन्स को अगर क्लीन करना है तो इसके लिए HNO3 75%, HCl जो है यस H2SO4, HCl जो है वो 20% और वाटर जो है वो 5%. बट फर्स्ट 2 जो है वो आपको डाइल्यूट होने चाहिए, इतना ही याद रखना है. HNO3 जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट होना चाहिए, नॉट कॉन्सेंट्रेटेड. सो इस कॉइन को अगर आप उसके अंदर डाल देते हैं तो यहाँ जैसे लिखा है आफ्टर 30 मिनट्स, आपको पानी में से बुलबुले आते हुए दिखाई देंगे. सो उसके बाद आप उसको बाहर निकाल सकते हैं. बट अगेन ये आपका एक्सपीरियंस आपको बताएगा कि कितना मिनट रखना है. इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ऑल द 30 मिनट्स, समटाइम इट विल बी इन ओनली 10 मिनट्स आल्सो. सो इसके लिए ये एक जनरल ट्रीटमेंट के बाद इस तरह से क्लीन हो जाएंगे और आपको प्रॉपरली उसको होल्डर्स और फोल्डर्स, तो अलग अलग टर्म है होल्डर्स एंड फोल्डर्स. सिंगल कॉइन जिसमें रखते हैं उसको होल्डर बोलते हैं एंड बंच ऑफ कॉइन जिसको है पूरा होल्डर्स जिसमें रखे जाते हैं उसको फोल्डर बोलते हैं. Then lead objects and iron objects. For the lead objects, for clean it, 5% solution of acetic acid and it's treated and washed away to remove all the acid. Then contrarily lead objects may be cleaned with the help of Amberlite IR120 and iron exchange resin to clean and corrosion projects. Then for the iron objects, its chlorides are very dangerous for the iron objects. So and therefore the chloride corrosion product should be removed completely. यहाँ पर उसके लिए भी जनरल ट्रीटमेंट्स मेटल के लिए दिए हैं. फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ कोरेजन प्रोडक्ट्स एंड इंटेंसिव वॉशिंग. तो इसमें 2% सॉल्यूशन ऑफ बेंजोट्राइजोल का यूज ज्यादा किया जाता है. ऑल टाइप्स ऑफ द आयरन मेटल्स, particularly iron materials. Okay, then you can see over here after this is before treatment and this is after treatment. So इसके बारे में एक this yes, any problem? So जैसे मैंने कहा कि एक सेशन में आपको इसका पूरा डिटेलिंग में जानकारी हम नहीं ले सकेंगे, हम जनरल जानकारी ले रहे हैं. इसके बारे में रीडिंग मटेरियल शेयर करेंगे, द पेपर्स एंड द बुक्स, क्योंकि एक में भी अगर मास्टर होना चाहते हैं तब भी उस पेपर को अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिकल करके देखिए. फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, if you want to become master or if you are really serious, then please try to work this in practically after reading seriously, reading carefully. Okay, so for the stone objects, again for the conservation of stone objects or the removal of dirt, again you can use here the 1% solution of detergent solutions and then removal of the soluble salts and removal of the biological substance. Then this concentration of stone. So here it's mentioned that the surface should be protected with a 2% solution of polyvinyl acetate. This is a general treatment which used everywhere. Recently, paraloid B72 is very commonly in use. So we need to try. हमने ये अभी तक try नहीं किया है, but we can try and we can see the effects. The restoration of stone objects की जब बात आती है, तभी broken जो भी हुआ material है, उसको properly आपको काम करना होगा. Here you can see. This is in piece. Then this is the first work and this is the second work. So after completion of the restoration process, see the beauty. So but for it you need the mastery. You need to work seriously. Here again you can see this is the blackish surface over here. But after restoration work you can see over here the image again. So this is for the marble stones generally. Then here again this is a statue where this work. Actually जापान एंड यूके इन दोनों दो जगह पर जो है स्टोन एंड मेटल वर्क इसका बहुत अच्छा वर्क किया जाता है. दिस कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन वर्क बोथ. ग्लास एंड गेजल्स की जब बात करते हैं, ग्लेजेस की जब बात करते हैं, सो ग्लास में लूज इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड बिकम क्लाउडी, which is commonly called as glass disease.
and glass is affected by alkaline water on the glass. If the affected glass is not cleaned, the glass completely gets damaged. And generally अभी मैंने जो शुरुआत में बताया, अगर आपके आजू बाजू में बड़े व्हीकल्स जाते हैं या फिर जो जैसे बड़ी कंपनियां अगर आपके आजू बाजू में हैं, तब तो आपको ज्यादा ध्यान देना होगा. एंड एट द टाइम ऑफ दिस अदर एग्जीबिशंस, टेम्पररी एग्जीबिशंस, अदर एग्जीबिशन, उस समय आपको इसका बहुत ज्यादा प्रॉपरली केयरफुली हैंडल करना होगा. आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ग्लास है ये यहाँ पर ब्रेक हो चुका है. ओके, सो पहले तो उन्होंने यहाँ उसको जो है टेप लगा करके इसको पहले देखा कि क्या ये सारे पीसेस जो है वो करेक्टली हम जोड़ सकते हैं. एंड आफ्टर कंप्लीट द ट्रीटमेंट्स आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं. So which type of the solvents or the materials they use for to paste this glass को जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, अगर आपको पता हो तो आप भी सोच सकते हैं. So here again you can see such type of the pieces are there. कभी आपके घर में ही अगर आपने सीरियसली स्टडी किया, so for your practical only, अगर आपने सीरियसली स्टडी किया तो घर में अगर ग्लास है तो उसको तोड़ दीजिए एक बार और प्रैक्टिकल करके देखिए कि यार क्या सारे पीसेस को हम प्रॉपरली जोड़ सकते हैं. अगर एक बार आपको उसमें अगर मास्टरी मिल गई तो फिर आप संग्रहालय में जाकर के काम करने लायक बन सकते हैं. देन यू विल बी एलिजिबल फॉर टू वर्क इन म्यूजियम्स. सो हियर सच टाइप ऑफ द glasses used nowadays. Here you can see 99% ultraviolet protection protects on the art. So this is an amazing clarity at the right side using glass. This is an excellent book if you want to study about the conservation and restoration of glass by Sandra Division की book है, and this is an excellent book. देन वुडन ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, पर्टिकुलरली हम वुड जब देखते हैं तो उसको पानी से हमको मालूम है और आग से, दोनों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है. तो उसके लिए जो है हमें उनसे पहले दूर रखना है, ये सबसे पहली बात. दूसरी बात, अगर मिल जाता है तो सबसे पहले हमको उसको क्लीन करना है. तो उसके लिए क्या हमको यूज करना है, सॉल्वेंट बॉन्ड एंड डिस्कलरेटिव, कॉपर बेस्ड डिस्कन, एंड देन वाटर बॉन्ड एंड कॉपर डिस्क्रम, आर्सेनिक, then copper chrome, boson, acid cupric chrome, zinc base, oxine copper. ये बोलना बहुत आसान है, ग्लाइकोल बेस वगैरह, सिलिकेट्स, बट ये कब और कहाँ और कैसे यूज करना है जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तभी पता चलेगा. मगर सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि इसको पानी से और आग से दूर रखिए. अगर कोई वुडन ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो सबसे पहले उसको जो है सॉफ्ट क्लॉथ जो होगा आपके पास में क्लीन, उसके अंदर उसको लपेट करके रखिए कुछ समय के लिए पहले. अगर उसके अंदर पानी है उसको सोखने के लिए, फिर उसको जो है नेचुरल इसमें, अगर वो अगर गुड कंडीशन मीन्स अगर मोटा है और ज्यादा डेलिकेट नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली सनलाइट में रख के उसको जो है ड्राई कर सकते हैं. मगर वो कितना टाइम करना है उसका भी एक अपना ये है, उसको भी ध्यान देना है. या फिर ड्रायर जो होता है उससे भी आप उसको कर सकते हैं, बट इन विच कंडीशन, इफ इट इज इन गुड, यानी जिसको स्ट्रेंथन अगर ज्यादा है देन ओनली. और फिर उसके बाद जो है बकेट ट्रीटमेंट्स का आप उसमें कर सकते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर जो आज जिस तरह से सीलिंग होते हैं, इन ओल्डन डेज इन द पैलेस वगैरह जो है, इस तरह से ऊपर का जो छत का सीलिंग का जो पोर्शन होता था उसमें भी वुडन का वर्क किया होता था. सो दैट टाइम आल्सो टर्पेंटाइन ऑयल मैक्सिमम इसमें यूज किया जाता है. देन सिरेमिक्स की बात करते हैं. सो जनरली सिरेमिक्स और क्ले ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, तो क्ले मटेरियल जो है वो थोड़ा सा धक्का लगने से भी वो टूट सकता है. सो उसके लिए जो है आपको इसके लिए भी प्रॉपर आपको केयर करना है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ मटेरियल जो यहाँ पर टूटे हुए हैं, और फिर उसको जोड़ने के लिए जैसे कहा शुरुआत में इस तरह से मटेरियल को उन्होंने चिपका के देखा कि क्या पीसेस ये हो सकते हैं, फिर उसके ऊपर प्रॉपरली ट्रीटमेंट करते हुए उसको लगा दिया. वेरी सॉरी फॉर टू से दैट आई एम नॉट मास्टर ऑफ दिस मटेरियल. मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर, पाम लीफ और कुछ हद तक जो है हमारा ग्लास मटेरियल जो है उसके बारे में कार्य किए हैं, बट मैक्सिमम वर्क पाम लीफ और पेपर मैन्युस्क्रिप्ट में मैंने किया है. तो सिरेमिक में मैंने वर्क नहीं किया है. So I will share the research papers regarding this, and you can read and you can do your own practical. So here also we can see some of the materials. But see, ये इतना bad condition में होने के बावजूद भी मास्टर वर्क जो करने वाले लोग हैं उन्होंने कितना बेस्ट बनाया है वो आप यहाँ देख सकते हैं. So such type of the bowls or some other things you can see over here in museum. This is the Seoul Museum of South Korea. So this is an excellent here.
but these are all after the restoration process only. Then leather objects की जब बात करते हैं तो particularly हमारे पास जो भी leather का ये होता है, तो उस समय हम देखते हैं कि जैसे हमारा बेल्ट है लेदर में, शूज है या फिर बुक कवर्स है, तो वो बैड कंडीशन में जब होते हैं पहले उसको फिर डस्ट और ये सबको क्लीन कर दीजिए, फिर उसके बाद 2% कैस्टर ऑयल जो है वो उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट के तौर पर आप यूज कर सकते हैं फॉर द फ्लेक्सिबल। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरह से मटेरियल जो आपको प्राप्त होता है। समटाइम्स यू नीड टू स्ट्रेंच इट, यहाँ आप देख रहे हैं इसको जिस तरह से उन्होंने ये प्रोसेस किया हुआ है, कुछ उसको तान करके हम कहते हैं कि कुछ थोड़ा सा उसको खींच करके फिटिंग बिठा करके आप उसको जो है लेदर को प्रॉपर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ वर्क यहाँ हो रहा है, और स्पेशली जब लेदर का जो हिस्सा टूट गया है या फिर उसमें अगर होल हो चुके हैं तो उसके लिए भी थ्रेड्स को प्रॉपरली यूज करते हुए आप वो काम कर सकते हैं। एक चमार को पूछिए, वो हमारे जो थेरोटिकल जो एक्सपर्ट है उनसे हमारा चमार जो है वो शूज के लिए अच्छा काम करता है। पॉलिशिंग क्या करना है या थ्रेड्स कौन से यूज करने हैं, होल्स कैसे बनाने हैं, वो उसको अच्छा पता है। हमारे पास भी लेदर मटेरियल के लिए और टेक्सटाइल मटेरियल के लिए आज भी मैक्सिमम ये चमार जो चप्पल सीने वाला जो व्यक्ति है, मूची जिसको बोलते हैं, या फिर जो टेलर जो होता है कपड़े सीने वाला जो है, इन लोगों की मदद उन मटेरियल के लिए आज भी ली जाती है, समटाइम्स एट सम प्लेसेस इन सम कंडीशंस ओनली। देन फॉर द बोन एंड आइवरी ऑब्जेक्ट्स, उसमें भी आप देखते हैं कि हियर जो उसके ऊपर डस्ट और ये सब आ जाता है बोन्स और आइवरी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सो वॉशिंग के लिए उसको 1% सोल्यूशन ऑफ लेवलॉन यूज किया जाता है। देन you removed by this immersing the objects in distilled water for about 5 seconds and repeated a number of times with fresh distilled water. So distilled water is something hard than our general water. So distilled water आपको laboratory में मिल सकता है या जो chemicals के shop होते हैं वहाँ पर आपको मिल सकता है। Then the objects are washed in 95% this rectified spirit twice and dried in air. Weak objects may be strengthened by 2% polyvinyl acetate in acetone. If the object is very fragile, it may be impregnated in 5% solution of polyvinyl acetate. So in the case of restoration, nitrocellulose adhesives may be used for this. So here you can see, अगर किसी डेंटिस्ट के पास अगर आप चले गए तो डेंटिस्ट आपको इसके बारे में बता सकेगा, क्योंकि दांतों का जो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं या हमारे पुराने जमाने में भी जो हमारे हड्डी के जो एक्सपर्ट्स होते थे वो ये काम करते थे। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्चुअली हड्डी का ही एक टूटा हुआ पार्ट जिसको ये मैन्युफैक्चर कर रहा है, और उसी को यूज करते हुए आप उसको फिर से यानी उसका एक आयुध बना लिए, इसको मार रहे हैं, फिर उसके बोन से आप और कुछ बना रहे हैं। इसका मतलब है कि एक हड्डी को कई बार कई तरीके से यूज किया जाता है। सो लिथिक से लेकर के वो शुरुआत हुई है। आप यहाँ देखते हैं सच टाइप ऑफ द हमारे पास कुछ कवटी जिसको हम कहते हैं, सो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज में ये ज्यादा यूज होता है। इस तरह के हमें कुछ हड्डियों के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं, कुछ टिप्स के अवशेष प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले तो उसको जो है आपको फिर सॉफ्टली क्लीन करना होगा, और ये क्लीनिंग करने के बाद में जो है फिर आपको एक एक जो पार्ट है उसको ये रख के देखना होगा कि ये करेक्ट होता है या नहीं होता है, फिर उसके बाद आपको उसकी प्रोसेस करनी है। सो दिस इज द ओरिजिनल वॉल्यूम डेटा एंड दिस इज द प्री प्रोसेसिंग बिफोर, देन नॉर्मल बेस्ड इरोजन जो यहाँ आप देख रहे हैं, then the connect this component leveling, and this is the record based this dilation. And here you can see this random walk for strongly jointed voxels. Then here you can see again such type of the works are over there. Then this excellent book if you want to study further, archaeological work Bone and Ivory by Sian Fellinel and Annie Antonims, a guide to best practice and preservation in preservation research and curation, which was forwarded T.J. Van. So museum conservation research case study from the K2 and this Mangalan collection. So I will share these books also with you. Then requirement for conservation laboratory in small museum. कम से कम एक या दो तो एक्सपर्ट आपके पास होने चाहिए जिनको आप प्रॉपरली ट्रेनिंग दे सके, जहां पर ये ऑलरेडी वर्क हो रहा है वहां जाकर के उनको ट्रेनिंग दे सके। एक लेबोरेटरी अगर आपको बनानी है छोटी सी छोटी, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से यहाँ लिखा है 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा भी
आप एक छोटे लेबोरेटरी के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो फिर आप उसको चाहे जितना बड़ा बना सकते हैं, नो लिमिट, उसके लिए कोई ये नहीं है। तो फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, टूल्स, केमिकल जो चाहिए वो आप वहाँ पर प्रॉपरली रखिए। कुछ फोटोग्राफ्स उसमें मैंने लास्ट में शेयर किए हैं, सो आई विल शेयर दिस आल्सो विथ यू। सो जनरली ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की लेबोरेटरीज बनाना है, इज एन आर्काइव लेबोरेटरी और द आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स लेबोरेटरी और समथिंग एल्स, रिस्टोरेशन वर्क, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्या मटेरियल आपके पास होना चाहिए। देन एनुअल स्टाफ डीप क्लीन ये होना चाहिए। हमारे पास एक बार स्टोर किया जाता है तो सालों तक उसको नहीं खोला जाता है। कई सारे स्टेट म्यूजियम्स के स्टोरेज एरिया को मैंने विजिट किया है, नेशनल म्यूजियम्स के स्टोरेज एरिया को विजिट किया है, एंड वेरी वर्स्ट सिचुएशन ओवर देयर। सो वेरी सॉरी फॉर टू से दैट, बट वी नीड रेगुलरली चेकअप्स फॉर दिस ऑल। अगर वहां जाकर के क्लीनिंग करना है, ये सारी प्रोसेस आपको करनी होगी। सो कंजर्वेशन, और इसके लिए जहां भी आप उसको मूव करेंगे प्रॉपरली उसको जो है कैसे रखना है, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब बॉक्सेस में आप पैक करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो किस तरह से पैकिंग करना है। अगर स्टोरेज में आप रैक्स में रख रहे हैं या ड्रॉवर्स में रख रहे हैं, सी दीज आर द रैक्स एंड दिस इज द स्टोरेज। सो यहाँ आपको रखना है तब भी प्रॉपरली रखना है, नहीं तो ऐसे ही हम उसको किसी ड्रॉवर में डाल देते हैं और बंद कर देते हैं। So please avoid this. You can use the separate small packs over there. Then for the architectural part, we can see here the buildings जिसकी हम बात करते हैं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये हमारे डॉक्टर भाऊ दाजीलाल संग्रहालय मुंबई का जो है बिफोर वर्क एंड आफ्टर वर्क आप यहाँ देख रहे हैं। सो इसके लिए कई सारे एक्सपर्ट्स, कई अलग, ये एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई का बिल्डिंग है, ये बिफोर द वर्क एंड आफ्टर द वर्क। सो इस तरह के सारे कामों के लिए आभा नरीमन लांबा एसोसिएट्स उनकी फर्म है, या कई सारे अलग अलग टीम्स है। सो आर्किटेक्चरल पार्ट में हम आपके साथ कुछ सेशंस शेयर करेंगे, कुछ रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, उसको जरूर देखिएगा, पर्टिकुलरली फॉर द आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन। ओके, नाउ हियर conservation which is not only for museums or not only for the archives but it's for new generations also। उनको भी जितना पॉसिबल है उतना आप क्या काम कर रहे हैं, नई जनरेशन को बचपन से जितना जल्दी हो सकता है स्कूल डेज से उनको दिखाइए, ताकि उनके अंदर क्यूरियोसिटी निर्माण हो सके, वो भी कार्य की एटलीस्ट शुरुआत कर सके। आपको मैं पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अब तक इस काम को हाथ लगाया है? नॉट मुझे ऐसा लगता है कि एक दो लोगों को छोड़ करके टच भी नहीं किया होगा किसी ने कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन काम के लिए। सो व्हेन वंस यू स्टार्ट द वर्क देन इट रिक्वायर्स टू मेनी इयर्स, कई साल लग जाते हैं एक्सपर्ट बनने के लिए, एंड देन यू स्टार्ट टीच फॉर अदर्स, तो दूसरों को सिखाने के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि इतने सालों में, 15 सालों में पिछले जो है, मैं सिर्फ पेपर और पाम लीफ इन दोनों के लिए ठीक से अच्छे से काम कर सकता हूँ, एंड लिटिल बिट फॉर द कॉइंस एंड दैट। सो ये बातें जो है ये आप जब प्रैक्टिकली करेंगे तब पता चलेगा, मगर लोगों को जानकारी तो प्रॉपरली दीजिए। हमारे यहाँ पर स्टोरेज एरिया में हमारे संग्रहालय के या आर्काइव्स के जो भी विजिटर्स आते हैं उनको प्रवेश भी नहीं दिया जाता है। सो प्लीज गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द विजिटर्स, so they will get information, they will get the knowledge and they will get the interest. If you want to read more, OP Agrawal ji who had done a great work, so such type of the books over there, I will share some excellent books with you, so please try to read it completely and try to work for at least one object. Okay, so thanks a lot to all। जिनको पता है कि ये काम करना कितना मुश्किल है, आज की तारीख में भारत में ये काम करना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि हमारे पास हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स है, स्पेशली देहरादून और उधर से ऐसे 4-5 ही लेबोरेटरीज है पूरे भारत में जो इसके बारे में काम करती है। अदरवाइज इन ऑल सेंट्रल म्यूजियम्स एंड द स्टेट म्यूजियम्स nowadays this is the biggest problem for to preserve these all type of the animals, जो भी हमारे पास प्राणियों का ये है, जो हमारे प्री हिस्ट्री सेक्शन वगैरह होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट टू ऑल। As I mentioned before starting the session, I will share one note with you, one bunch of notes. It's not only notes, but there are 2 questions in that same note. So please try to solve it, and after solve, you please take the photograph and share it with me. क्योंकि वो पढ़ने के बाद आपने कितना सीरियसली पढ़ा है उसी में क्वेश्चंस है, और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हुए नोट्स का ये है। I will share it with you. Please try to read it seriously.
If any questions, most welcome. मैंने जो भी कहा आपको उसको ध्यान रखिए. It's an very general, क्योंकि 1 घंटे में सारी चीजों के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है. एक ऑब्जेक्ट को लेकर भी आप एक दिन पूरा जो है सेशन कर सकते. So if any questions, most welcome. किसी को कुछ पूछना है? Yes, Suri ji. Sir, may I? Yes, please. Okay, thank you so much for this brilliant explanation. We really appreciate it. Even this part today, like conservation and also preservation, are very important. So my question is, if we need to practice right now this archive, we have to learn or we can train it. If we can train it, how many times should be taken? For a single material, you need at least 7 days. You need at least 7 days. Practical work अगर आप करें, if you are starting the practical work, you need at least 7 days for to take a primary information. If you are master, you need more than 1 year. Okay. Sir, there are different organizations like NRLC from where 6 months and 3 months courses are there. I mean, Yes. students can go for that also, I think. In our last session, in important institutions regarding this, I was mentioned about this NRLC. Yeah, exactly so. So if anyone is interested, they can contact National Research Laboratory, Lucknow. They are working very hard. They are having 6 months and 3 months courses. So if anyone is interested, they can definitely join the course. And for all district places, there are the committees like INTACT, INTA. Yeah. So their chapters are there. So you can take the help of them also. Yeah, very true. Any more questions? सर Okay, एनएमएल thank क्या you, sir. प्रकार Thank you होता so है? much. सॉरी, One minute. रश्मि जी, सोरी जी को कंप्लीट करने दीजिए. Yes, सोरी जी. Just You for want- saying that, thanks. I appreciate it. Yes, Nothing thank else. you. Thanks a lot. Thank you so much. Yeah. Yes. Yes, रश्मि मैडम. एनएमएल क्या प्रकार होता है? टाइप्स एनएमएल कांच Animal- का एक प्रकार होता है. हाँ, What you want to ask clear? एनएमएल एनामल किस प्रकार हाँ. का हो सकता है? एनामल हाँ. कोटिंग. या भुजुंग सर, ये किस तरह का हो सकता है, ऐसा कहना है आपको? नहीं, कांच का एक प्रकार होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है एनएमएल का ऑब्जेक्ट. मैं बाद में पूछती हूँ. ठीक है. Okay, no problem. Okay. Any more questions? Anyone? In chat room there is a question by Roshni ji. Could you please repeat the last part again? The reading material and what has to be done. You need to solve the questions in that notes and please send it to me. Just this only. Any more? If not, then we'll stop here. Tomorrow we'll meet. But before ending the session, just a humble request to all of you that please present in our tomorrow session. Okay? So it will be better, and I will put the message in our group also. So all will get the proper instruction. So humbly thankful to all of you, and thanks Dr. Munmun Mondal ji, Dr. Sharma ji, and all. Thank you, sir, once again for this informative session. I don't have words to express my gratitude. I mean, despite your health condition, you are working so hard. I mean, this kind of lectures, it is, valuable to us. It really means to us. Thank you so much. Tomorrow we'll meet.